تو مجھے اسد ایک صوفے سے اٹھتا ہوا نظر آیا۔ وہ ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا جہاں سے ہوٹل میں آنے والوں پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ اس کی ہوٹل میں موجودگی کا مطلب تھا کہ وہ کافی دیر سے وہاں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی طرف جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ غزالہ بھی وہیں صوفے پر براجمان تھی۔ اسد جب بھی میرے پاس آتا ہوٹل کی لابی سے انٹرکام پر رابطہ کرتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھ سے اجازت لیے بغیر میرے کمرے کے دروازے پر آ گیا ہو۔ میں کمرے میں نہیں تھا۔ وہ نیچے رک کر میری واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ غزالہ اخلاقاً اس کے پاس آ گئی۔ خیریت ہے؟ آج صبح سویرے کہاں نکل گئے تھے؟ اس نے مجھ سے ہلکا سا معانقہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ تمہاری قمیض پسینے میں تر ہو رہی ہے۔ کودی کی طرف چلا گیا تھا۔ آؤ اوپر چلتے ہیں، یہاں ڈھنگ سے بات نہیں ہو سکے گی۔ اس کے ہونٹوں پر مانی خیز تبسم پھیل گیا۔ ہم تینوں لفٹ کی طرف ہو لیے۔ مجھے بھابھی سے ڈان کے دوغلے پن کا پتہ چلا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے؟ اس نے کمرے میں پہنچتے ہی متاسفانہ لہجے میں پوچھا۔ اسے میرے ذریعے اپنے خواب پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ اس مرحلے پر وہ کوئی رسک لینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ مجھے ہر طرف سے گھیر کر اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کھل کر کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے۔ تم گودی کی طرف کیوں گئے تھے؟ وہ اچھا علاقہ نہیں ہے۔ اس وقت تم بزرگانہ انداز میں باز پرس کر رہے ہو۔ میں نے کہا اور قدرے سکوت کے بعد ان دونوں کو اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ ڈان اور چاؤفان یہ دونوں جونک بن کر تمہاری جان کو لپٹ گئے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا۔ تمہارا شبہ بالکل درست ہے۔ چاؤفان نے تمہارا تعاقب کیا ہوگا، لیکن اس کے پاس وائٹ ہاگ کے بارے میں کئی خبریں تھیں۔ غزالہ نے اعتراض کیا۔ وہ ان کا پیچھا کر رہا تھا تو اسے اتنا وقت کیسے مل گیا کہ وہ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ اسد نے لاجواب ہو کر بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں اسے پہلے سے معلوم ہوں۔ موقع دے کر اس نے وہ اپنی تازہ کارکردگی کے طور پر سنا دی ہوں۔ اب تمہیں ہر وقت ہوشیار رہنا ہوگا، اسد بولا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اب راجن خود ہمارے جال میں آ رہا ہے۔ تم اس کا قصہ پاک کرو تاکہ تم کو ڈان سے نجات ملے۔ ایک بار پاسپورٹ ہاتھ میں آ جائیں تو تمہیں بلا تاخیر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ راجن ہمارے جال میں آ رہا ہے؟ ابھی تم نے زیر آب کارروائی کا ذکر کیا ہے۔ سوچنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کیا اس سلسلے میں تم کوئی مدد کر سکو گے؟ میں نے پوچھا۔ اچھا ہوا کہ میں شروع سے الگ رہا، میں دور رہ کر تمہاری ہر طرح مدد کر سکتا ہوں۔ عملی طور پر تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ راجن ڈان کا شکار ہے، وہ تم کو ہر قسم کے وسائل فراہم کرنے کا وعدہ کر چکا ہے۔ میں اسے بھی دیکھ لوں گا۔ اتنی سی بات پر یہ خوش فہمی مناسب نہیں کہ ہم راجن کو اپنے جال میں آتا سمجھ لیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اس سے تمہاری ملاقات کی رات نکال لی ہے تو تم کیا کہو گے؟ اسے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ ملاقات کہاں اور کن حالات میں ہوتی ہے۔ میں نے اپنی جگہ پر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ کیا اس سے تمہارا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کل رات اس کا ایک آدمی میرے پاس آیا تھا۔ اسد کا وہ انکشاف سنتے ہی میں اپنی جگہ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، راجن کی خواہش ہے کہ میں فوری طور پر اس سے ملوں۔ اوہ، میں نے بے ساختہ اپنی حیرت ظاہر کی۔ تم نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ وہ پہلے سے تم کو جانتا ہے؟ میری اسے کوئی شناسائی نہیں ہے۔ وہ آدمی اچانک آیا تھا، اسد نے وضاحت کی۔ تمہیں اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ تم سے کس حیثیت سے ملنا چاہتا ہے۔ غزالہ نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اسے معلوم تھا کہ میں بینکاک میں اپنے محکمے کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ راجن کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، اس کے لیے یہ باتیں معلوم کرنا مشکل نہیں تھا۔ میں حیران ہوں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ وہ تم سے میرا سراغ معلوم کرنا چاہتا ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ کل شام میں نے زوبراج کے سیٹلائٹ فون پر اس سے بات کی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنا قاصد تمہاری طرف بھیجا ہوگا۔ میں تمہاری اور اس کی گفتگو سے ابھی تک بے خبر ہوں۔ اس نے دیدل دلیری کے ساتھ مجھ سے رجوع کیا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ محرکات بھی رہی ہوں گی۔ میں نے اسے راجن سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ تم نے اس سے بہت بڑا مطالبہ کیا ہے۔ وہ مر جائے گا مگر یہاں سے پسپا ہونے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اس نے تم سے وقت خریدا ہے۔ مجھ سے رابطہ کر کے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اب ہر قیمت پر تم تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ پہل کرنے والا یہ لڑائی جیت جائے گا۔ تم اس سے میری ملاقات کا ذکر کر رہے تھے، وہ کیا قصہ تھا؟ میں نے اس کے آدمی سے کہہ دیا ہے کہ میں تنہا راجن سے نہیں مل سکتا، میرا ایک معاون ضرور میرے ساتھ ہوگا۔ یہ شرط عائد کرتے ہوئے میرے ذہن میں تمہارا نام تھا۔ نہیں، میں اس کا مشورہ نہیں دوں گی۔ مجھ سے پہلے غزالہ بول پڑی۔ ابھی تم خود کہہ رہے تھے کہ وہ بہت باخبر آدمی ہے۔ اسے یہ معلوم ہوگا کہ تم یہاں اپنے محکمے کے اکلوتے نمائندے ہو۔ یہاں تمہارا ساتھ کون دے سکتا ہے؟ اسے ذرا بھی شبہ ہو گیا تو یہ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میں نے گنجائش نکالی ہے، یہ ضروری نہیں کہ تم میرے ساتھ جاؤ۔ اسد نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اپنی ذات کو اس کے شک و شبے سے بالا رکھنا تمہارا کام ہوگا۔ کیا تم نے یہ یقین کر لیا تھا کہ یہاں آتے ہوئے تمہارا پیچھا نہیں کیا گیا؟ میں نے پوچھا۔
मेरी सारी जिंदगी ऐसे खेलों में गुजरी है। वो बोला। घर से कदम बाहर निकालने से पहले मैंने इस इम्कान को जहन में रखा था। बाहर इसका आदमी मौजूद था। आजकल मैं अपने साये से भी होशियार रहता हूँ। मार्केट के इलाके में मैं उसे जुल देने में कामयाब हो गया। इसके बाद मैंने तुम्हारे होटल का रुख किया था। तुम्हारी बातों से जाहिर हो रहा है कि तुम मुझसे मिलने का फैसला कर चुके हो। यह जबरी फैसला है जो मुझे करना पड़ा। वो यहाँ का ताकतवर आदमी है। मेरे इनकार की सूरत में मेरे खिलाफ कोई भी स्कैंडल बन सकता है। वो अखबारी नामा निगारों से पुलिस अफसरान तक किसी को भी खरीदने की सलाहियत रखता है। मेरा भी यही मशवरा होता, उससे जरूर मिलो, मगर अपने दफ्तर में। तुम्हारे लिए मोती महल में जाना खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। तुम्हारे दफ्तर में कितने कमरे हैं? एक ही कमरा है, इससे मिला हुआ बाथरूम और छोटा सा किचन है। तुम क्या सोच रहे हो? वहां मेरे लिए कोई गुंजाइश निकल सकती है? किचन और बाथरूम पर 2 छत्ती बनी हुई है। वहां तुम आराम से छुप सकते हो, लेकिन इस तरह तुम क्या कर सकोगे? वो कमीना आदमी है। तुम्हारे तहफ्फुज के लिए किसी न किसी का होना जरूरी है। बात बिगड़ती हुई नजर आई तो मैं नताइज की परवाह किए बगैर सामने आ जाऊंगा। मुझे खौफ महसूस हो रहा है, गजाला कमजोर आवाज में बोली। उसके साथ खुला तसादुम हम तीनों के लिए खतरनाक साबित होगा। भाभी का ख्याल दुरुस्त है, असद ने उसकी तायद की। मेरे जाने या उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आया तो उसके साथ मुहाफिजों का टोला भी होगा। इनमें से किसी को 2 छत्ती का ख्याल आ गया तो तुम बेबसी से 2-4 हो जाओगे। इसका अंदेशा दुरुस्त था। मैं जोश में आकर यह फरामोश कर गया था कि राजन हर वक्त मुहाफिजों के नरगे में रहने का आदी था। वो अकेला होता तो मैं इससे निमट सकता था। मुहाफिजों की मुसल्ला भीड़ से निमटना किसी के बस में नहीं था। सोबराज की मौत और फिर मोती महल में बम का धमाका होने के बाद यह तवक्का बेसूद थी कि राजन अपनी कमीनगाह से तनहा बाहर निकलने की हिम्मत कर सकेगा। बेहतर यही है कि फिलहाल मुजाहमत का ख्याल दिल से निकाल दिया जाए। कुछ देर के सकूत के बाद मैंने कहा, हम उसकी तजवीज़ के मुताबिक उससे मिल लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहता है। अगर उसने आपको पहचान लिया तो क्या होगा? गजाला ने पुरतशवीश अंदाज में कहा। यही मेरी अब तक की कामयाबियों का राज है कि कोई मुझे नहीं पहचान सकता। मैं हत्तुल इम्कान अपनी जुबान बंद रखूंगा। मैं करीब से मुशाहिदा करना चाहता हूं कि मेरी धमकी के बाद उसमें कितना दमखम बाकी रह गया है। इतनी सी बात के लिए तुम बहुत बड़ा खतरा मोल लोगे। जान ने उसे महाज राय पर मजबूर कर दिया है तो मुझे करीब से उसका जायजा लेना ही पड़ेगा। पिछली शाम तक सब कुछ पुरसकून था। जब से मैंने सैटेलाइट फोन पर राजन से बात की थी, वाकयात में अचानक तेजी आ गई थी। जाफान ने अपने तौर पर भाग दौड़ शुरू कर दी थी। राजन जवाबी वार की तैयारियों में लग गया था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे आने वाले 1-2 रोज इससे मामले में फैसला कुन साबित होंगे। आज शाम वही आदमी मुझसे राब्ता करेगा। असद कह रहा था, मैं उससे क्या कहूँ? मुलाकात का वक्त और मकाम तय करके मुझे बता दो, मैं तैयार रहूंगा। फैसला हो गया। ये मुनासिब नहीं था कि इस मुलाकात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने के लिए असद मेरी तरफ आता। हमारा वास्ता एक चालाक मुजरिम से था। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरह राजन या उसके आदमियों को मेरे ठिकाने का इल्म हो सके। यह तय हो गया कि मैं उससे किसी तयशुदा मकाम पर मिलूंगा। हम खासी देर तक इस मुतवक्का मुलाकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल करते रहे। इस दौरान में राजन के इम्कानी सवालात के जवाब भी ज़ेर बहस आए। इनमें सरे फहरिस्त मेरा मामला था। असद को इस बारे में अपनी मुकम्मल लाइल्मी का इजहार करना था। कुछ देर बाद असद वापस चला गया। मैंने गजाला पर अपनी फिक्रमंदी का साया नहीं पड़ने दिया, लेकिन अंदर से मैं मुस्तरिब था। राजन ने असद से रब्ता करके मामलात को बहुत ज्यादा उलझा दिया था। इस वक्त राजन और डान एक चक्की के 2 पार्ट बने हुए थे, जिनके दरमियान हम किसी भी वक्त बुरी तरह पिस सकते थे। 3 बजे मेरे कराची वाले मोबाइल फोन पर जलाल की कॉल आ गई। खैर खैरियत के तबादले के बाद उसने पासपोर्टों के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने उसे डान का हतमी फैसला सुना दिया। वो मुझसे बहुत खुश है, लेकिन पासपोर्ट लुटाने पर आमादा नहीं है। वो राजन के खात्मे के बाद मिलेंगे। फिर तुमने क्या सोचा है? जलाल ने सवाल किया। मेरे सोचने समझने की कोई गुंजाइश नहीं रही। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी और मुझे राजन के फितने से निमटना होगा। इस मार्के में जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। मायूसी की बातें मत करो, तुम इससे बड़े मार्के स्तर कर चुके हो। अल्लाह ने चाहा तो तुम इस मुकाबले में भी सुरखरू रहोगे। दुआएं और बद्दुआएं इस कदर कारगर होती तो मैं अभी से राजन को कोसना शुरू कर देता। यह दिलों का मामला है। हम होंठ हिलाते हैं लेकिन दिल हमारी दुआओं का साथ नहीं देते। दिल की गहराइयों से निकली हुई हर दुआ और बद्दुआ असर रखती है। मुझे यहाँ वहशत हो रही है। मेरा रुआ रुआ राजन की तबाही के लिए दुआ को है। राजन ने सोबराज की शनाख्त न बदली होती तो इस वक्त मैं तुम्हारे पास होता। कल तक असद भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। वो क्यों? मैंने उसकी बात काट कर बेताबीर से सवाल किया। क्या तुमने उसे मुअत्तल कर दिया? नहीं, बैंकॉक में उसके तकर्रुर को 2 साल पूरे हो चुके हैं। उसे वापस बुलाया जा रहा है। रात को उसे आर्डर फिक्स कर दिया जाएगा जो वो सुबह देख लेगा। इस बारे में तुम उससे कोई जिक्र नहीं करना।
क्या इस हुक्म को कुछ दिनों के लिए टाला नहीं जा सकता था? तकर्रुर और तबादले अपने रूटीन के मुताबिक होते हैं, इनमें मेरा कोई अमल दखल नहीं होता। मेरे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इससे मेरी ज़हनी हम आहंगी हो गई थी। इसकी जगह आने वाला मेरे किसी काम नहीं आ सकेगा। यह बात मैं भी समझता हूँ। हर आने वाले को अपने कदम जमाने के लिए वक्त दरकार होता है। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे उसे मेरा मशवरा मानने की सजा दी जा रही है। इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दो। वो बात मेरे और तुम्हारे दरमियान हुई थी, किसी तीसरे को इसकी भनक भी नहीं मिली। यह ख्याल अपने जहन से झटक दो, उसने जोर देकर कहा। इस बेवक्त तबादले से उसे रंज होगा। वो अगले 24 घंटों में मेरे साथ राजन से मिलने वाला है। मैंने उसे इस अहम वाक़े से आगाह करना जरूरी समझा। इस मुलाकात की जरूरत क्यों पेश आ गई? मेरे अल्फाज ने उसे चौंका दिया। मजबूरी है, राजन खुद उससे मिलना चाहता है। मुझे शुबा है कि वो असद से मेरे बारे में जानने की कोशिश करेगा। ये क्या कहानी शुरू हो गई? मुझे कुछ तो तफसील सुनाओ। जलाल की आवाज़ से बेचैनी मुतरश्शे थी। मैं इसीलिए कह रहा था कि यह असद के तबादले का मौजू वक्त नहीं है, मैंने चुपते हुए लहजे में कहा और इख्तिसार के साथ वाक़यात दोहराने शुरू कर दिए। मैंने जिक्र गोल कर दिया कि मैं चाउफान के साथ राजन के बहरी अड्डे का जायजा ले चुका था। हमारे अंदाजे दुरुस्त साबित हो रहे हैं। पूरी कहानी सुनकर जलाल मुस्तरिबाना लहजे में बोला, सोबराय की तरह वो भी FBI या CIA का एजेंट है। तुमने यकायक उस पर खतरनाक दबाव डाला है। उसे यकीन होगा कि डैनी बैंकॉक में है तो वह असद से जरूर मिला होगा। इस वक्त उसे तुम्हारे सिवा किसी और की तलाश नहीं हो सकती। मैं फोन पर जलाल से बात कर रहा था मगर मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। मेरे नज़दीक ये बात तय थी कि राजन से हमारी मुलाकात नाकाम साबित होना थी। असद से मेरे बारे में कुछ मालूम न होने पर राजन का चिराग पा होना करीने कयास था। उसके बाद वो असद का दुश्मन हो सकता था। इससे मुलाकात के बाद असद बैंकॉक से रवाना हो जाता तो राजन की किसी साजिश के शिकार होने से महफूज रह सकता था। इसकी जगह आने वाला आदमी राजन के लिए नया होता। वो असद का बदला इससे नहीं ले सकता था। मेरे बारे में इन खतूत पर अपना काम जारी रखने के लिए राजन को नए आदमी से अस्तरनूर राब्ता करना होता और बात दूर निकल जाती। इस वक्त यहाँ के हालात बहुत नाजुक हैं, मैंने जलाल से कहा। अफसरान बाला ने असद के तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं तो मेरी एक गुजारिश है, उसे पाबंद न किया जाए कि वह अपने जानशीं की आमद तक बैंकॉक में रुका रहे। उसे अपनी सवाबदीद के मुताबिक यहाँ से वापस लौटने की खुसूसी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। मैं इन नज़ाकतों को समझ रहा हूँ, देखूंगा कि इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। ज़रूरी हुआ तो मैं खुद उससे बात कर लूँगा। तुम मुझसे कोई जिक्र नहीं करना। मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मैं उसकी सलामती के बारे में फिक्रमंद हूँ। हो सकता है कि उसके तबादले का हुक्म उसके लिए इनाम बन जाए। मुझे हैरत है कि उसने राजन के बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। हो सकता है कि उसकी भेजी हुई रिपोर्ट दफ्तरी प्रोसेस से गुजर रही हो। ये कोई आम मामला नहीं है, तुम्हें इस पर खसूसी तवज्जो देना होगी। जलाल की यकीन दहानी के बाद बात खत्म हो गई। वो तमाम तफसीलात उसके लिए इस कदर परेशान कुन साबित हुई थी कि उसने राजन से मेरी मुलाकात के मामले को ज्यादा अहमियत नहीं थी। क्या असद का तबादला हो रहा है? मेरे फारिग होते ही गजाला ने सवाल किया। हाँ, जलाल बता रहा था कि आर्डर्स जारी हो चुके हैं। चाहिए अच्छा ही हुआ। राजन की मुखासमत मोल लेकर यहाँ रहना खासा दुश्वार हो सकता है। आपसे ज्यादा मुखासमत किसने मोल ली होगी? उसे फोन करके आपने और ज्यादा मुश्तिल कर दिया है। असद इसी वजह से उसकी निगाहों में आया है। मेरी और बात है, इसके लिए मुझ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। असद एक शनाख्त के साथ यहाँ रह रहा है। वो जाना बुझा आदमी है। राजन उसके साथ कोई भी घटिया हरकत कर सकता है। असद चला गया तो राजन उसके जानशीं के पीछे पड़ जाएगा। नए आदमी पर वो इतनी आसानी से हाथ नहीं रख सकेगा। ये बात वो जानता होगा कि नए आने वाले को हालात व वाक़यात का रुख समझने के लिए वक्त दरकार होता है। अगर उसने ये समझ लिया कि तबादले के बहाने असद को जान बूझ कर यहाँ से वापस बुला लिया गया है तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? जो भी होगा देख लिया जाएगा। अब मुझे चाउफान और उसके आदमियों पर इन्हिसार करना होगा। मेरे मूड का अंदाजा करके गजाला ने खामोशी इख्तियार कर ली। शाम तक चाउफान की तरफ से कोई खबर नहीं मिली तो मैंने उसका नंबर मिलाया। उसने मायूसी के साथ बताया कि गोदी के इलाके में अपना आधा दिन बर्बाद करने के बावजूद वो व्हाइट हाग पर लंबी छुट्टी की अफवाहों की तस्दीक करने में कामयाब नहीं हो सका। उसने एक अच्छा काम किया था कि डान को मेरी सरगर्मियों से बाखबर कर दिया था और यह भी बता दिया था कि मैं व्हाइट हाग को किसी ज़ेरे आब कार्रवाई के जरिए तबाह करने के इम्कानात का जायजा ले रहा था। उसने वो बात मुझे अपने कारनामे के तौर पर बताई थी, मगर मैं समझ रहा था कि उसने डान को मेरा पीछा करने के बारे में अपनी रिपोर्ट देते हुए इन नकात का जिक्र किया होगा। उसकी तरफ से मेरा जहन साफ नहीं था, लेकिन बैंकॉक में मैं डान और उसके आदमियों से बनाए रखने पर मजबूर था। रात के 8 बजे असद का फोन आ गया। राजन के आदमी ने अपने वादे के मुताबिक उससे राब्ता किया था और असद को उसी रात 10 बजे मोती महल पहुंचने की हदायत की थी। फिर तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने उसे टटोलने की नीयत से पूछा। उसने बुलाया तो जाना पड़ेगा, उसने कहा। मैं बिल्कुल खाली हाथ जाऊंगा, चाहो तो तुम अब भी अपना इरादा बदल सकते हो।
उसके लबो लहजे से अंदाजा हो रहा था कि उसे इस वक्त तक अपने तबादले की खबर नहीं मिली थी। मैंने सोच समझ कर फैसला किया था, मेरा इरादा अटल है। यह बताओ कि तुमने अपने अफसरान बाला को इस जबरी मुलाकात के पस मंजर से आगाह कर दिया है? मैं अपने बड़ों को पूरी तरह बाखबर रखने का आदी हूँ, उसने पूरे एतमाद लहजे में कहा। मैंने किसी मुबालगा आराई के बगैर एक नोट फैक्स कर दिया था। इसमें तुम्हारा कोई जिक्र नहीं था। दफ्तरी खतो किताबत में तुम्हारा कोई तज़किरा नहीं होता। यह जरूरी था कोई ऊंच नीच हुई तो वो लोग बात संभाल लेंगे। मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कब और कहाँ से लोगे? 9:30 बजे अपने होटल से बाएं तरफ बर्गर शॉप पर मिल जाओ। कोई असलिया हरगिज साथ न लेना। मेरा ख्याल है कि तलाशी के बगैर हमें उसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा। तुम फिक्र न करो, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी वजह से तुम्हें किसी नई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मैं 9:30 बजे वहां मिल जाऊंगा। मैं फोन बंद करके मुड़ा तो गजाला कुर्सी पर गंभीर सूरत बनाए खामोश बैठी हुई थी। मुझसे नजरें चार होती वो उदास लहजे में बोली, मैं फिर कह रही हूँ कि आप वहां ना चाहें। असद खुद उसको संभाल लेगा। सोगवार होने की जरूरत नहीं, मैं असद से कम नहीं हूँ। राजन के दर्शन करके थोड़ी देर में वापस लौटाऊंगा, मैंने शगुफ्ता लहजे में कहा। असद की बात दूसरी है, वो सरकारी आदमी है। राजन उससे बदकलामी कर सकता है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपके साथ वो कोई भी बदसलूकी कर सकता है। मैं अब इस शहर से उकता गया हूँ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मेरी ख्वाहिश है कि हम जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाएं। इसके लिए राजन का किस्सा पाक होना जरूरी है। मैं उस तक रसाई का कोई मौका ज़ाया नहीं करना चाहता। गजाला ने मायूस होकर खामोशी इख्तियार कर ली। वो जानती थी कि किसी खौफ की वजह से मेरे इरादों में तब्दीली नहीं आ सकती थी। फिर भी वो अपनी फितरत से मजबूर थी। हमेशा मुझे खतरात से दूर रहने के लिए मशवरा देती रहती थी। असद से बात होने के बाद मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं रहा था। मैंने रूम सर्विस को आर्डर देकर कमरे में खाना मंगवा लिया। मैं नहीं चाहता था कि गजाला मेरी वापसी तक भूखी बैठी रहे। खाने से फारिग होकर मैंने तैयारी की और होटल से निकल खड़ा हुआ। असद के मशवरे पर अमल करते हुए मैंने बीमगन अपने साथ नहीं ली थी, अलबत्ता उंगलियों में सफाक नगीनों वाली अंगूठियां मौजूद थी। मैं होटल की लॉबी में टहल कर यह अंदाजा लगाने की कोशिश करता रहा कि मेरे कुर्बो चवार में निगरानी करने वाला कोई शख्स मौजूद न हो। पूरी तरह अपना इत्मीनान करने के बाद मैं होटल के सदर दरवाजे के बजाय दूसरी सम से बाहर निकल गया। मेरा अंदाजा था कि चाउफान ने अपनी रिपोर्ट देते हुए डान को यह बता दिया होगा कि मैं इस पर अपनी निगरानी करने का शुबा कर रहा था। इस शिकायत के बाद इन दोनों को मोहतात हो जाना चाहिए था। शायद डान ने मेरे शुबात से आगाह होने के बाद निगरानी का सिलसिला खत्म करा दिया था। होटल से निकलने के बाद भी मैं मोहतात रहा। इस इलाके की सड़कें दूर तक रोशन थीं। किसी के लिए ये मौका नहीं था कि वो नींद तारीकी की आड़ लेकर किसी का ताक़ुब कर सके। मेरे पास बर्गर शॉप पहुंचने के लिए काफी वक्त था। मैं टहलने के अंदाज में आगे बढ़ता रहा। एक जगह रुककर मैंने सिगरेट सुलगाने के बहाने अपने गिरदो पेश का जायजा लिया और मुतमईन होकर आगे बढ़ गया। मुकर्रर वक्त से 3 मिनट पहले मैं बर्गर शॉप के सामने पहुंच चुका था। मैं बर्गर शॉप की तेज रोशनियों से बचकर एक खंभे की ओट में रुका ही था कि किसी तरफ से ग्राहकों को उतारने वाला एक नौजवान थाई लपक कर मेरे करीब आ गया। सर यू वांट गर्ल्स, यंग वेरी ब्यूटीफुल, उसने मेरी तरफ झुककर सरगोशियाना लहजे में कहा। वो अपने लबो लहजे से पढ़ा लिखा मालूम हो रहा था। मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा और दुरुस्त लहजे में अंग्रेजी में कहा, दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। तो उसने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे उसके नजदीक मेरी दिमागी सेहत मशकूक हो। गनीमत यह हुआ कि वो मजीद कुछ कहे बगैर रुखसत हो गया। इसी असना में एक टैक्सी मेरे करीब आकर रुक गई। पिछली खिड़की में असद का चेहरा देखकर मैं फुर्ती से अकबी नशिस्त पर सवार हो गया। असद ने अपनी चेहरा नुमाई कराते ही सिरक कर मेरे लिए जगह खाली कर दी थी। मेरे सवार होती टैक्सी हल्के से झटके से आगे बढ़ गई। तुम बर वक्त आ गए वरना इज्जत को खतरात लाक होने लगे थे, मैंने हंस कर उससे कहा। कहीं रुकने के लिए ये वक्त बहुत नामुनासिब है। शाम होते ही जिस्मों के व्यापारी इस इलाके की सारी गलियों और सड़कों में फैल जाते हैं। मालूम होता है कि किसी ने तुम्हें भी ताक लिया। कदम कदम पर मिलने वाले इन दलालों ने इस शहर की शनाख्त तबाह करके रखती है। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये इस इलाके में होने वाली तवील जंगों का शाखसाना है जो शहर के शुराफा अभी तक भुगत रहे हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद 8 बरस इंडो चाइना वार होती रही। इसके शोले सर्द हुए तो वियतनाम वार चल पड़ी। उसने आसपास के मुल्कों में सब कुछ तबाह कर दिया। वो 20-21 बरस इस खित्ते के बदतरीन माहौसाल थे। ये कहानियां मेरे लिए अब नई नहीं रही। मैंने उसकी बात काट कर कहा, शायद यहाँ का हर बासी अपने दिफा में यही कहानियां दोहराता है। तुम्हें बुरी लगती होंगी मगर ये बातें अब तारीख का हिस्सा बन चुकी है। इस वक्त तारीख को छोड़ो और अपने जगराफिया का ख्याल रखो। पीछे कोई मुश्तबा गाड़ी तो नहीं चली आ रही। वो जहां दीदा सीक्रेट एजेंट था, मेरी अचानक याद दहानी पर पीछे सर घुमाए बगैर न रह सका। अभी तक तो मैदान साफ है। तलमों के बाद उसने कहा, आज तुम दफ्तर से किस वक्त लौटे थे? मैंने पूछा। 3 बजे आ गया था, इस वक्त भी वहीं से आ रहा हूँ।
मैंने इस्लाम आबाद को रिपोर्ट भेज दी है कि मैं 10 बजे इससे मिलने जा रहा हूँ। वेरी गुड, मैंने सर हिलाकर कहा। वो सवाल करके मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि तबादले की खबर उस तक पहुंची या नहीं। वो इस वक्त तक इस मामले से बेखबर था। पाकिस्तान का वक्त थाईलैंड से 2 घंटे पीछे होता है। वहां से रात गए फैक्स किया जाने वाला पैगाम बैंकॉक के वक्त के मुताबिक आधी रात के बाद ही मौसूल होने का इम्कान था। जलाल का हिसाब बिल्कुल दुरुस्त था कि असद को तबादले की खबर सुबह मिलेगी।